मॉर्निंग सर। म्यूट कर दीजिए आप। हाँ, म्यूट कर दीजिए। अब आवाज क्लियर पहुंच रहा है। Today we are going to start LCR circuit. LCR circuit. LCR circuit. When the inductor, capacitor and resistance are joined in the circuit in the series combination, then the circuit is said to be the LCR circuit. This is the definition of LCR circuit. आपको बताया गया कि किसी सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया जाए तो उसे एलसीआर सर्किट कहते हैं, जिसका ये डायग्राम होगा। LCR LCR दिस इज द एलसीआर सर्किट। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि when the inductor, capacitor and resistance are joined in the series combination, then the circuit is said to be the LCR circuit. When alternating source is provided to the LCR circuit, then alternating current inflow into the LCR circuit. Alternating current is flow into the LCR circuit, which are in same in LCR, because LCR in connected in the series combination, but potential difference of are different. Potential difference are different of the inductor, capacitor and resistance. So we suppose that the potential difference between the inductor is VL, between the capacitor is VC, and between the resistance is VR, while equivalent potential is capital V. ये आपका डायग्राम हुआ। तो आपको हमने बताया क्या कि when the inductor, capacitor and resistance are joined in the series combination, then the circuit is said to be the LCR circuit, and when the alternating source provided to the LCR circuit, then alternating current flow in the LCR circuit is the same, but potential difference are different. Let us consider potential difference between the inductor is VL, between the capacitor is VC, and between the resistance is VR, while equivalent potential difference is capital V. You know that for the resistance, the potential difference and electric current are in the same direction, same phase. So VR and I in the same direction be represented. हमने इनको सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि आपको पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर इन सेम फेज, इसलिए दोनों को सेम डायरेक्शंस में शो किया गया। फिर आपको बताया गया था कि जब सर्किट में इंडक्टर लगा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड होता है। तो आइए VL को हमने यहां से दिखा दिया, ये VL करंट I से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड हो गया। फिर आपको बताया गया था कि जब सर्किट में कैपेसिटर लगा हो तो कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस करंट से 90 डिग्री लैग बिहाइंड होता है। तो ये हो गया आपका VC।
ये हो गया VC. VC is the 90 degree lag behind from the current. ये हो गया. सपोज कर लीजिए कि इफ VL is greater than VC. सपोज कर लिया कि इफ VL is greater than VC, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द इंडक्टर इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द कैपेसिटर, then resultant potential difference represent in the direction of the upward direction, in the direction of the VL, because VL is greater than VC. So resultant of VL and VC is represented to the direction of the VL minus VC. यानी हमने आपको बताया कि VL और VC में अगर VL को हम ग्रेटर सपोज कर लें तो VL और VC का रिजल्टेंट VL माइनस VC होगा, जो अपवर्ड डायरेक्शंस में शो किया जाएगा, और ये करंट से जो है अपवर्ड डायरेक्शंस में है, इसका मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होगा. तो ये हो गया VL माइनस VC, यानी VL और VC का रिजल्टेंट हो गया VL माइनस VC. अब हमको फाइंड आउट करना है VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट. इसको फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हमने एक रेक्टेंगल का रूप ले लिया. ये रेक्टेंगल हो गया आपका. सपोज कर लेते हैं कि वो ABC, चलो इसका नाम ले लिया, एंड दिस इज द डायगोनल. ये डायगोनल हो गया. डायगोनल शो द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द LCR सर्किट. ये भी जो है इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द LCR सर्किट है, एंड इन द डायग्राम ये कैपिटल भी जो है इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है LCR सर्किट के लिए. ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस करंट से अप है. इसका मतलब कि हम सपोज कर लेते हैं कि LCR सर्किट के लिए जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो करंट से 5 फेज लैग फॉरवर्ड है. अब VL माइनस VC है तो ये लाइन भी VL माइनस VC को शो करेगा. याद रखिए VL माइनस VC. ये एक राइट ट्रायंगल हो गया OAB, जिसमें OA जो है VR को शो कर रहा है, AB जो है VL माइनस VC को शो कर रहा है. इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से आप इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ट्रायंगल OAB V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल का स्क्वायर. ये वैल्यू हो गया. आपने स्टडी किया होगा कि जब सर्किट में इंडक्टर लगा होता है तो उसके लिए रेजिस्टेंस जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस काम करता है. जब सर्किट में कैपेसिटर लगा हो तो उस समय रेजिस्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस काम करता है, जिसको XC से डिनोट करते हैं, और इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस XL से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं. तो आइए ओम्स लॉ के अनुसार यहां पर जो V है, V स्क्वायर है, इस V स्क्वायर को हमने सेम रहने दिया, लेकिन VR स्क्वायर को हमने लिख दिया I स्क्वायर R स्क्वायर. V स्क्वायर इज VR इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. VL की जगह पर आप नोट कर सकते हैं IXL. VC की जगह आप नोट कर सकते हैं IXC होल का स्क्वायर. V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर, एंड यू कैन टेक I कॉमन. सो जब I को आप कॉमन लेंगे तो ये बाहर निकलने के बाद इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि होल का स्क्वायर लगा हुआ है. तो ये होगा I स्क्वायर इन द ब्रैकेट XL माइनस XC होल का स्क्वायर, डिवाइडेड बोथ साइड बाई I स्क्वायर. I स्क्वायर से हम बोथ साइड डिवाइड कर दें तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. अगर स्क्वायर को रिमूव करें तो हम स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करेंगे. तो V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. ये स्टेप हुआ. अब आपको मालूम होना चाहिए कि V और I का रेशियो जो है रेजिस्टेंस को शो करता है. V अपॉन I जो है रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, but this resistance arises due to the LCR circuit. So
V upon I is not called the resistance, it is called the impedance and it is denoted by capital Z. हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं इसको। तो देखिए V upon I रेजिस्टेंस है, V upon I रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, but this resistance arises due to LCR circuit, so it is not called the resistance, it is called impedance, and it is represented by symbol Z. इसका मतलब कि V upon I रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बट दिस रेजिस्टेंस arises ड्यू टू द LCR सर्किट, सो इट इज नॉट कॉल्ड द रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड द इंपीडेंस। यानी हम जो है LCR सर्किट के लिए रेजिस्टेंस को इंपीडेंस कहते हैं, जिसको Z से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब कि V अपॉन I की जगह यू कैन राइट Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो याद रखिए, आपको पूछता है एग्जाम में कि फाइंड द फार्मूला ऑफ द इंपीडेंस फॉर द LCR सर्किट, यानी LCR सर्किट के लिए इंपीडेंस का फार्मूला डिराइव करने के लिए आपको कहता है। तो आप डायग्राम बना करके जब यहां तक सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपको इंपीडेंस का फार्मूला प्रूफ होगा। तो ये है इंपीडेंस, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल का स्क्वायर। अब इंपीडेंस जब फाइंड आउट हो गया तो हम निकालेंगे फेज, क्योंकि LCR सर्किट में आपको मैंने डायग्राम के अंतर्गत शो किया था कि जो इक्विवेलेंट वोल्टेज भी जो है करंट I से 5 फेज लैग फॉरवर्ड है, तो फिर उसका वैल्यू क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है। देखिए ये डायग्राम हम अगेन इसको हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमको फेज निकालना है और हम डायग्राम यहां से क्लीन कर चुके हैं। तो अगेन हम फेज को फाइंड आउट करने के लिए उसी डायग्राम को रिवाइज किए हैं, आप इसको अगेन कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। आप ये डायग्राम हमने बनाया था, जिस डायग्राम में ये आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज था और डायग्राम में इक्विवेलेंट वोल्टेज करंट से 5 फेज लैग फॉरवर्ड है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि LCR सर्किट के लिए जो फेज का वैल्यू होता है वो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फेज इन LCR सर्किट। तो इस डायग्राम को आप देखिए, ट्राइंगल OAB में, ट्राइंगल OAB tan थीटा इज इक्वल tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, द परपेंडिकुलर VL माइनस VC एंड बेस VR, ये वैल्यू होगा। tan फाई इज इक्वल टू VL मीन्स IXL, VC मीन्स IXC एंड VR मीन्स IR। आप न्यूमरेटर से I को कॉमन ले लीजिए और डिनोमिनेटर में I से I कैंसिल होगा,
इस तरह से ये वैल्यू हो गया tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपान R। तो आप इस फार्मूले से फेज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप, VL means IXL, VC means IXC and VR को you can write IR. You can take I common from the numerator and that I cancel from the denominator I. So finally you can get the phase of the LCR circuit tan phi is equal to XL minus XC upon R. आप मैथमेटिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि phi is equal to tan inverse EXL minus EXC upon लिख R. You can write, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं phi is equal to tan inverse XL minus XC upon R, where phi is the phase difference of the LCR circuit between resultant voltage and alternating current. तो इस तरीके से आप फेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पर कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है। क्या पॉइंट्स है, आइए देखा जाए। आप बताइए कि एलसीआर सर्किट के लिए जो फेज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव होगा तो क्या कंडीशन हो सकता है, निगेटिव होगा तो आपका कंडीशन क्या होगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं। नोट हम फर्स्ट यहां पर स्टेप लिख रहे हैं, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। आइए यहां से हम स्टेप चल रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि एक्सएल एक्सी से ग्रेटर है, तो आप बताइए कि जब आप इस फार्मूले में रख करके सॉल्व करेंगे, जब एक्सएल एक्सी से ग्रेटर होगा तो tan फाई का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वैल्यू पॉजिटिव। इस फार्मूले में रखने के बाद जब एक्सएल एक्सी से ग्रेटर होगा तो बाय दिस फार्मूला यू कैन गेट tan फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी tan फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। tan फाई पॉजिटिव का मतलब हो गया कि फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इससे क्या कंडीशंस निकलता है, आइए। दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस is phi phase lag forward than alternating current। याद रखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज फाई फेज लैग फॉरवर्ड देन अल्टरनेटिंग करंट। तो किस कंडीशंस में आपका ये फॉरवर्ड हुआ, जब आपका tan फाई पॉजिटिव। tan फाई पॉजिटिव मींस व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो याद रखिएगा, जब एक्सएल एक्सी से ग्रेटर होगा तो उस कंडीशंस में tan फाई का वैल्यू पॉजिटिव। tan फाई का वैल्यू पॉजिटिव मींस फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और उस समय आप क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब यही हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द फाई फेज लैग फॉरवर्ड देन अल्टरनेटिंग करंट। यानी ये जो है आपका भी जो है करंट आई से फाई फेज लैग फॉरवर्ड है, इसीलिए डायरेक्शन में अप आपको दिखाया गया है। और उस समय एलसीआर सर्किट का एक पर्टिकुलर नाम रखा गया है, याद रखिएगा। And circuit is said to be the inductance dominated circuit। यहां पर इस लाइन को याद रखिए, यहां पर एक्सएल एक्सी से ग्रेटर लिए हैं तब आपका जो है फाई का वैल्यू पॉजिटिव लिया गया है। और फाई का वैल्यू पॉजिटिव विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज फाई फेज लैग फॉरवर्ड देन अल्टरनेटिंग करंट। तो उस समय
उस समय एलसीआर सर्किट का एक पर्टिकुलर नाम रखा गया कि उस समय जो एलसीआर सर्किट है उस एलसीआर सर्किट को आप कहेंगे इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट. What is the particular name of the LCR circuit? If XL is greater than XC, so that LCR circuit is said to be the inductance dominated circuit. उसका नाम होगा inductance dominated circuit होगा आपका. किस कंडीशंस में होगा? तो when XL is greater than XC. अब आइए सेकेंड स्टेप. नोट सेकेंड. तो आइए नोट सेकेंड में हम देखें. हमने एक बार एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी हमने सपोज किया. अब इस बार हम ले रहे हैं कि इफ एक्सएल इज लेस देन एक्सी. सपोज कर लीजिए कि एक्सएल एक्सी से अगर लेस है तो बाय दिस फार्मूला इफ एक्सएल इज लेस देन एक्सी देन बाय दिस फार्मूला tan phi इज इक्वल टू निगेटिव. tan phi निगेटिव मीन्स phi का वैल्यू निगेटिव. और phi का वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि एलसीआर सर्किट में जो आपका वोल्टेज है वो करंट से 5 फेज लैग बिहाइंड होगा. क्या होगा? 5 फेज लैग बिहाइंड. इट मीन्स दिस मीन्स alternating voltage is 5 phase lags behind than alternating current. ये होगा आपका. यानी जब एक्सएल एक्सी से लेस देन होगा, यानी इफ एक्सएल इज लेस देन एक्सी देन बाय दिस फार्मूला tan phi का वैल्यू आपका निगेटिव होगा. tan phi इज इक्वल टू निगेटिव मींस phi का वैल्यू निगेटिव. एंड phi का वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो करंट से 5 फेज लैग बिहाइंड है. यानी ये डायग्राम जो अप है वो आपका अप डाउन से होगा. यानी यही डायग्राम अप डाउनवर्ड बन जाएगा आपका. और ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो रिजल्टेंट वोल्टेज ये होगा और ये 5 फेज अप नहीं 5 फेज डाउन होगा. तो ये किस कंडीशंस में होगा? तो ये कंडीशंस है कि इफ एक्सएल इज लेस देन एक्सी यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस देन द फेज ऑफ द एलसीआर सर्किट इज नेगेटिव एंड दिस शोज दैट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 5 फेज लैग बिहाइंड देन द अल्टरनेटिंग करंट. और यहां पर भी इसका एक पर्टिकुलर नाम है. अब एलसीआर सर्किट को आप क्या कहेंगे? एलसीआर सर्किट को यहां पर कहेंगे आप एलसीआर सर्किट को आप कहेंगे कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट. यानी अब इसको कहेंगे आप कैपेसिटेंस कहिए आप कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट. तो याद रखिए 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इफ एक्सएल इज लेस देन एक्सी तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एलसीआर सर्किट. तो आप बताएंगे कि इफ एक्सएल इज लेस देन एक्सी देन एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी द कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट. तो ये था आपका फुल एलसीआर सर्किट. इस तरीके से जो है आपका जो है कंप्लीट एलसीआर से जो क्वेश्चन पुट अप करेगा वो क्वेश्चन आपका ये होगा कि फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट. फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा फाइंड द इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट. जो आप मैंने फर्स्ट हमने फार्मूला प्रूफ किया है इंपीडेंस का Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर इन द ब्रैकेट XL माइनस XC होल स्क्वायर. फिर हमने आपको फेज का वैल्यू निकाले हैं एलसीआर सर्किट का फेज tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन कैपिटल R. इस पर मैंने दो आपको कंडीशंस बताए हैं. फर्स्ट कंडीशन हमने आपको बताया कि इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी देन फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा. और फाई का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब हो गया कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 5 फेज लैग फॉरवर्ड देन अल्टरनेटिंग करंट एंड दैट एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी द इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट. सेकेंड कंडीशन अभी हमने आपको बताया कि इफ एक्सएल इज लेस देन एक्सी देन फाई का वैल्यू नेगेटिव एंड इस कंडीशंस में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट से 5 फेज लैग बिहाइंड होगा.
और इस कंडीशन में एलसीआर सर्किट का एक पर्टिकुलर नाम रखा गया, दैट सर्किट इज सेड टू बी द कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। तो इन दिस वे दिस एलसीआर सर्किट इज कंप्लीटेड, यानी ये फुल आपका जो है आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया। अब आइए इसी के साथ एक और कंडीशंस आपको ऐड करते हैं। एक वर्ड आता है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी? इस पर आइए डिस्कस करते हैं हम पॉइंट लेकर के। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पर डिस्कस करना है। अभी आपने जस्ट स्टडी किया जेड इजिकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ये आपने स्टडी किया। अभी फार्मूला हमने आपको बताया इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, सपोज कर लीजिए कि इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन बाय दिस फार्मूला जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, क्योंकि दिस वैल्यू 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर मीन्स आर, और ये होगा आपका मिनिमा। तो क्या कंडीशंस मिला आपको? क्या आपने देखा कि एलसीआर सर्किट के लिए जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल है तो उस कंडीशन में इंपीडेंस का वैल्यू बहुत ही लेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको मैंने मिनिमा लिखा। अगर हमें करंट निकालना है सपोज कर लीजिए, तो आई इज इक्वल टू, अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज में इंपीडेंस से हम डिवाइड कर दे तो करंट का वैल्यू मिल जाएगा हमको। और आपको इस यहां पर देख रहे हैं कि जब इस कंडीशन को हमने यूज किया तो जेड का वैल्यू मिनिमा हो गया, और जेड का वैल्यू मिनिमा होने का मतलब कि करंट आपका मैक्सिमा होगा। करंट क्या होगा? मैक्सिमा। तो हम कह सकते हैं कि इन एलसीआर इन रिजोनेंस कंडीशंस, ये क्या है अभी डिफाइन करेंगे आपको। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, एंड इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन बाय दिस फार्मूला जेड इज इक्वल टू आर मींस मिनिमा। और मिनिमा होने का मतलब कि सडनली आई क्या होगा आपका? मैक्सिमा हो जाएगा। तो अब आइए आपको हम एलसीआर सर्किट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आपको हम पहले डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द रिजोनेंस कंडीशंस। तो लिसन, इफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इफ XL is equal to XC means if inductive reactance is equal to capacitive reactance, then impedance of the LCR circuit is minima and suddenly flow of current is maxima. This condition is called the resonance conditions. This condition is called the resonance conditions. And that conditions, the frequency of alternating current is called the resonance frequency. तो ये हमने आपको डेफिनेशन दिया, एक बार फिर लिसन आप करें कि इफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस देन इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इज मिनिमा एंड सडनली अल्टरनेटिंग करंट इज मैक्सिमा। सडनली अल्टरनेटिंग करंट इज मैक्सिमा। That condition is called the resonance condition, and in resonance condition the flow of current is the frequency of the flow of current is the resonance frequency. मतलब ये बताएं कि रिजोनेंस कंडीशन कब होगा? तो रिजोनेंस कंडीशन कब होगा? जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस फार्मूला से इंपीडेंस आपका डिक्रीज करेगा, और जब इंपीडेंस डिक्रीज होगा तो करंट का वैल्यू मैक्सिमा हो जाएगा, और करंट का वैल्यू मैक्सिमा होने के इस कंडीशन को ही हम रिजोनेंस कंडीशन, एंड उस कंडीशन में जो करंट की जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन ये उठता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करता है कि व्हाट इज द रिजोनेंस कंडीशन ऑफ द एलसीआर सर्किट। तो जो मैंने आपको बताया उसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, यहां तक लिखेंगे और इसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किए हैं। अगेन एक बार लिसन कर सकते हैं, व्हाट इज द रिजोनेंस कंडीशंस।
तो बताएंगे इन LCR सर्किट इफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस देन इंपीडेंस ऑफ द LCR सर्किट इज मिनिमा एंड सडनली फ्लो ऑफ करंट इज द मैक्सिमा दिस कंडीशन इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन एंड इन रेजोनेंस कंडीशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज सेड टू बी द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इतना लिखने के बाद इस डेफिनेशन को आप नोट कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट होता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये भी कई बार एनुअल एग्जाम में पूछा है कि फाइंड द फार्मूला ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द LCR सर्किट। क्या है देखिए, XL इज इक्वल टू XC। हमने ये पॉइंट्स लिया क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन इसी पर स्टार्ट हुआ था कि जब XL XC के इक्वल होगा तभी रेजोनेंस कंडीशन स्टार्ट होगा। तो इफ XL इज इक्वल टू XC तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XL, तो XL का वैल्यू ओमेगा L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XC, तो XC का वैल्यू 1 ओमेगा C। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1 रूट LC। You know that the value of omega is equal to 2 pi of 1 root LC। 2 pi f is equal to 1 root LC। ये आपका f क्या है, तो यही f अल्टरनेटिंग आपका जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। यहां से f का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आप, तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। तो यही है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा कि व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन, तो आप क्या करेंगे, जस्ट जो मैंने पहले बताया उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर उस क्वेश्चन में ऐड करेगा कि डिराइव द फार्मूला ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तब आप यहां से लेकर यहां तक इसको प्रूव करेंगे। अब आइए इस पर कुछ कंडीशंस आप देखिए। व्हाट इज कंडीशंस, क्या है कंडीशंस। सपोज कर लीजिए कि हम LCR सर्किट में हम AC नहीं, हम DC करंट फ्लो करा रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट की जगह पर हम DC करंट फ्लो करा रहे हैं, क्योंकि ये जो भी डेरिवेशन किया गया है ये आपका अल्टरनेटिंग करंट पर फार्मूला डिराइव किया गया है। F इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है फॉर द अल्टरनेटिंग करंट के लिए है। सपोज कर लीजिए कि अगर हम इस LCR सर्किट के अंदर LCR सर्किट में हम DC करंट फ्लो करा रहे हैं। DC करंट अगर फ्लो करा देते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि DC करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। आपने देखा होगा कि DC करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। अगर DC करंट की फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे तो ये टोटल वैल्यू यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू 1। इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम LCR सर्किट में अगर हम DC करंट को फ्लो करा दें तो फिर आपका रेजोनेंस कंडीशंस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने स्टडी किया है कि Z इज इक्वल टू R। आपने रेजोनेंस कंडीशन में देखा है कि Z इज इक्वल टू R यानी इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर है। और आपने पढ़ा होगा कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होता है तो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। इसका मतलब कि जब आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमा तो अल्टरनेटिंग करंट भी मैक्सिमा, एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिनिमा तो अल्टरनेटिंग करंट भी मिनिमा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि रेजोनेंस कंडीशन नेवर ऑकर्स व्हेन द DC करंट इज फ्लो इन द LCR सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन के लिए आपको फ्लो कराना होगा अल्टरनेटिंग करंट। अब सेकेंड स्टेप आपको हम ले रहे हैं। सेकेंड स्टेप, अभी आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपान R। ये फार्मूला आपको मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किए। पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन पूछ देगा कि इन LCR सर्किट में सपोज कर लीजिए कि LCR सर्किट के अंतर्गत रेजोनेंस कंडीशन अगर आकर्ष हो जाए तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस
between the alternating voltage and alternating current. What is the phase difference alternating voltage and alternating current for the resonance conditions? तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं. tan phi इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि रिजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी. एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रिजोनेंस कंडीशन शो कर रहा. और रिजोनेंस कंडीशन का मतलब कि व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन दिस वैल्यू इज जीरो. एंड यू नो दैट जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा. tan phi इज इक्वल टू जीरो का मतलब कि फाई का वैल्यू क्या हो गया, जीरो. और फाई जीरो क्या शो कर रहा है आपको, फाई इज इक्वल टू जीरो शो कर रहा है कि एलसीआर सर्किट के रिजोनेंस कंडीशंस में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो होता है. एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पुट अप कर चुका है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट इन द रिजोनेंस कंडीशन. तो आपको आंसर देना होगा कि इन रिजोनेंस कंडीशन ऑफ द एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट इज जीरो. इट मींस alternating voltage and alternating currents are in the same phase or in same directions. तो ये आपका जो है पॉइंट्स था जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप किया जा सकता है. तो ये आर्टिकल कंप्लीट आपका दी एंड हो चुका है. अब इससे रिलेटेड आप जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे. इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप करता है, तो आइए न्यूमेरिकल्स आपको जो है हम एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं. सपोज कर लीजिए कि एलसीआर सर्किट है. इस एलसीआर सर्किट में हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लिया. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 40 ओम. इंडक्टर का वैल्यू और कैपेसिटर, इंडक्टर का वैल्यू हमने ले लिया 3 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू हमने ले लिया 2 माइक्रो फैराड. ये हमने दे दिया क्वेश्चन आपको कि इन एलसीआर सर्किट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 40 ओम, इंडक्टेंस इज इक्वल टू 3 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड. आपसे कह दिया गया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ करंट इनटू द एलसीआर सर्किट. एलसीआर सर्किट, लेकिन कंडीशंस क्या है कि जब इस एलसीआर सर्किट को 110 वोल्ट से ऐड किया जाए, यानी जब एलसीआर सर्किट को 110 वोल्ट से ऐड कर दिया जाए तो उसमें फ्लो होने वाले करंट के वैल्यू बताइए, जबकि एल सी का वैल्यू आपसे दिया हुआ है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब एलसीआर सर्किट में करंट का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो पहले आप निकालेंगे इंपीडेंस का वैल्यू. जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस in the bracket आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल का स्क्वायर. ये फार्मूला है आपका. इस फार्मूले से आप इंपीडेंस निकालेंगे.